So first of all, after a very long time, I guess I enjoyed the speaking session. After 1 year, Prince literally cried. You were not able to do it, but in your family somebody did it. That also makes you feel proud. We learned Hindi in Hindi, Punjabi in Punjabi. Why to learn English in Hindi? Be like Indian old generator. आज मैं सुबह से मेरा मूड ठीक नहीं था क्योंकि मैंने सुबह अपना अकाउंट चेक कर लिया था. कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट. मुझे ये बिल्कुल गलत लगती है. आपने ना मेरे साथ रेस लगानी है, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स को पता है ये रेस के बारे में. आपने मेरे से रेस लगानी है, मेरे फ्रेंड के घर तक भागना है, ठीक है. आप साइकिल यूज कर सकते हो, बाइक यूज कर सकते हो, कार यूज कर सकते हो, भाग सकते हो. मैं सिर्फ चलूंगा. कौन जीतेगा, आप या मैं? बहुत लोग हैं ग्रामर आती है, इंग्लिश तब भी नहीं बोली जाती. इफ यू आर द बेस्ट इन द क्लास देन यू आर इन द रॉन्ग क्लास. मैंने दीदी से एक चीज सीखी थी, अपॉर्चुनिटीज को ना नहीं करनी. जब आप लाइफ में कुछ कोशिश करते हो, कुछ बड़ा करते हो ना, फिर तो फेल होना भी उसमें बड़ी बात होती है. So first of all, after a very long time, I guess I enjoyed the speaking session. How many of you have enjoyed it? Everybody almost. ऐसे तो नहीं हैंड रेस करी जा रहे? No sir. Has everybody enjoyed it? Yes sir. Okay जी. Very good. You don't need to raise both hands. But yeah, seriously I enjoyed it. The best part here was that everybody tried to give a better speaking. Except few, but if you were not able to do it today, you do need to learn from your classmates as well. How everybody was, doing things better. But I liked the last performance the most, okay, because I gave you a chance to choose the topic by yourself. And Anu made her mind to share the journey of her with the next step. And how beautifully she explained. So I would like to add one more thing here, which maybe Anu knows or not. It is about, as you might know, Anu's brother was my schoolmate. Okay, we were like besties. Now he is in UK, and I still remember the moment. I was teaching that time, but Prince was studying from somewhere. And Prince used to take my help also, because there he used to learn English in Hindi. 1 year was passed. After 1 year, Prince literally cried. And he told me few things. He said, I went to the classes, means the tuitions where he was learning English as a language. Went there without any holiday. He didn't even take a single holiday from there because he really wanted to learn English. And he is not a kind of student who used to study in the schools. He was not into studies, but still he went to the tuition with the hope that he would be one day very good at English. But after 1 year, when he was not able to speak with anybody in English, he was literally crying. And that time I also felt very bad for him. But now I feel double proud also, and I am very sure Prince would be also very proud if he had listened to you the way you have explained the things. He would be, or he would have been over the moon. Right? So he would be very happy. Sometimes happen when you see your dreams in others. You were not able to do it, but in your family somebody did it. That also makes you feel proud. So I am very happy that, and this is the reason why Prince told you to come here only. Because he already tried other places and he knew how things were different here. But the problem with him was he was so much into translation. From where he was learning, they were teaching Hindi to English. Everything had to be translated.
and when he came here, that time my sister used to teach here. So he was not able to understand the things because his bad habit of translation too much, he was not able to overcome. So this is also a very big message. Translation is good at a limit. If you are doing so much translation, you would not be fluent in English. And if you think about IELTS, PTE or any English language proficiency test, you were not able to crack it because in that there is no Hindi Punjabi. Yes, sir. So that is why translation is not important or very good for learning any language. We learned Hindi in Hindi, Punjabi in Punjabi. Why to learn English in Hindi or Punjabi? But now I would like to talk about your performances also. Like the students who were nervous, like Divya. Divya, when you came here, you know, one day Bruce Lee mentioned in his one of the interviews, be like water. Because you keep water or pour water in anything, it takes the shape of it. Do you understand what I am saying? If I am pouring some water in this, water would take the shape of these mics, although I think this will not work after that, but okay, it will take the shape of it. For example, the water is in this bottle, okay, so it is in this shape. So he said, be like water, wherever you are, get adjust there, take the shape accordingly. But for you guys, I want to say, be like Indian old generator. याद है वो डुग 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 करके जो चलता है, स्टार्टिंग याद है उसकी कैसे होती है, डुग 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 डुग, वो फिर फास्ट हो जाता है. बी लाइक अ जनरेटर, है ना. पहले शुरू में अपने आप को ना गर्म कर लो थोड़ा सा. कोई बात नहीं, स्टार्ट नहीं अच्छा जा रहा ना, कोई बात नहीं, पर धीरे 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 इम्प्रूव करी जाओ. जनरेटर की होती है ना आवाज, धीरे 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 सही हो जाती है. शुरू में बहुत स्लोली डुग 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 डुग, फिर बाद में वो फास्ट हो जाता है, एक रिदम सा पकड़ लेता है, वो रिदम पे ही रहता है. तो कोई बात नहीं, शुरू में जब आते हो नर्वस होते हो, हेजिटेशन होती है, कोई बात नहीं, बट गिव अप नहीं करना. हर एक सेंटेंस के साथ इंप्रूव करो खुद को, एंड देन यू विल सी द चेंज. मेरे साथ बहुत बार होता है. आज मैं सुबह से मेरा मूड ठीक नहीं था, क्योंकि मैंने सुबह अपना अकाउंट चेक कर लिया था. इफ यू नो यू नो, ओके. तो मेरा सुबह से मूड नहीं ठीक है, एंड इसलिए मैं चीज़ें थोड़ा सही से एंजॉय नहीं कर पा रहा था. स्पोकन इंग्लिश क्लास में स्टूडेंट्स को शायद फील हो गया होगा, बट धीरे 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 मैंने अपने बैड मूड को गुड मूड में चेंज करा, क्योंकि मैं दुखी तो रहना ही नहीं चाहता. ऐसे ही आप भी कोशिश करा करो कि बी लाइक अ जनरेटर. शुरू में थोड़ा टाइम लग रहा है गर्म होने में, बट धीरे धीरे आप एक रिदम में आ जाओगे, चीज़ें बेटर हो जाएंगी. ये होप से आना. जब आपकी शुरू में परफॉर्मेंस खराब जा रही है, धीरे 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 बेटर जा रही है ना, थोड़े टाइम के बाद आपके शुरू से भी अच्छी जानी शुरू हो जाएगी. प्रैक्टिस, कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट. मुझे ये बिल्कुल गलत लगती है. पहली बात तो इट्स नॉट अबाउट ओनली अ मैन, ओके, इट्स नॉट अबाउट अ मैन, है ना. हमने यस यस सर प्रैक्टिस, नहीं, ऐसा नहीं होता. प्रैक्टिस किसी को भी परफेक्ट नहीं बना सकती. और लिखा ही क्या है, प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट. तो वुमेन क्या करें, मोर प्रैक्टिस. नहीं, आई फील परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक समवन परफेक्ट. चाहे वो लड़का है या लड़की है, परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक समवन परफेक्ट. जब तक आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है ना, यू कांट अचीव व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. मैंने ये पहले भी चीज़ कही है, मैं अभी भी फिर से पूछता हूँ. जैसे न्यू स्टूडेंट से पूछते हैं, चलो ओल्ड स्टूडेंट से पूछते हैं, अनु से, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. अभी आई एम फीलिंग लिटिल बैड कि मैंने रिकॉर्ड क्यों नहीं करी, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. एंड अनु, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आपने ना मेरे साथ रेस लगानी है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को पता है ये रेस के बारे में. आपने मेरे से रेस लगानी है, मेरे फ्रेंड के घर तक भागना है.
ठीक है, आप साइकिल यूज कर सकते हो, बाइक यूज कर सकते हो, कार यूज कर सकते हो, भाग सकते हो। मैं सिर्फ चलूंगा, कौन जीतेगा, आप या मैं? इट्स ओके, भूल जाओ इन सभी को। क्वेश्चन समझ आया? लॉजिकली जो ठीक लग रहा है वो मुझे बताओ। आप भाग भी सकते हो, आप बाइक यूज कर सकते हो, साइकिल यूज कर सकते हो, मैंने सिर्फ चल के जाना है, कौन जीतेगा? If I talk about as a student, I'll say that if I go that flow, if I use a car, bike or something else, I just wanted to be complete the journey. I just wanted to reach the journey. चलो, आई नो कि आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, बट सिंपल ये बताओ, आप जीतोगे कि मैं जीतूंगा? मैं चल के जा रहा हूँ आराम से, आप बाइक यूज कर सकते हो, कार यूज कर सकते हो, भाग सकते हो, कौन जीतेगा? Obviously, me. यू आपको लग रहा है आप जीतोगे? मैं शर्त लगा लूंगा आप नहीं जीत सकते। जितने की मर्जी। That I wanted with. वेट वेट, आप जीतोगे क्योंकि आप तो जानते हो पहले से उनका घर है। क्योंकि आपको तो रास्ता ही नहीं पता मेरे बेस्ट फ्रेंड का। मेरे फ्रेंड के घर का रास्ता पता आपको? किधर भागोगे, भागे जाओ। It is like a bujarat. नहीं, वजारत नहीं थी ये, ओके। ये कॉमन सेंस चलो होती है, बट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना? आपको मेरे फ्रेंड का घर ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता। मेनली क्या है, रास्ता ही नहीं पता, आप कैसे मेरे से जीत जाओगे? आपको चाह के भी और ना चाह के भी मेरे पीछे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता मुझे पता है। अब वहां पे आप भागो, जोर लगा लो, आप कहोगे यार मैं दिन रात भागा फिर भी नहीं पहुंचा, इतना हार्ड वर्क करा फिर भी नहीं हुआ, इतनी प्रैक्टिस करी फिर भी नहीं हुआ। अरे गलत रास्तों पे प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? तो रास्ता सही होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस कैन मेक समवन परफेक्ट। बाकी नहीं तो करते रहो प्रैक्टिस, कोई फायदा नहीं है। गलत डायरेक्शन में भागते रहो, कोई फायदा नहीं है। अगर समझ जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो मुझे लाइफ में थोड़ा लेट पता लगा, बट जब पता लगा तो मैंने हर एक चीज़ कोशिश करी अच्छे से करने की। पहले रास्ता समझा, है ना, भागने से पहले। नहीं तो भाग जाओ फिर रास्ता ढूंढो, फिर क्या फ़ायदा? फिर तो भागते रहेंगे, पूरी लाइफ भागते रहेंगे, राइट? यस सर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करो चीज़ों को लेके कि मैंने कैसे इम्प्रूव करना है। प्रैक्टिस को परफेक्ट करो, समझ जाओ जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी या होऊंगा मैं एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, बट मैं ट्राई अपना 100% करूंगा। हर एक सेंटेंस के साथ मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये मत सोच के आना इस क्लास में, मेरी क्लास में तो कभी ये सोच के मत आना कोई सिलेबस कवर करने लगे हो कि मैंने ग्रामर कवर करनी है। बहुत लोग हैं ग्रामर आती है, इंग्लिश तब भी नहीं बोली जाती। एंड ट्रस्ट मी, इन द रियल वर्ल्ड नोबडी इज गोइंग टू जज योर इंग्लिश, नोबडी इज गोइंग टू करेक्ट योर इंग्लिश। You make mistakes, nobody will say you have mentioned something wrong. People will try to understand. I've seen people going to Canada also with the poor English, with no English. Even should I say something? Sir, even I don't know like the grammar I have been where I should use it. And the sentence which I wanted to speak here, there, that was like कि मैं आप बोला सीगा कि मेरे भरा ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, but the way I speak it, like in the present form only. It's fine if you are able to convey what's inside you, inside your brain. That's fine. पहले तो यही करना चाहिए अनु। टेंसेस तो सेकेंडरी हैं, है ना। कंप्लीट टेंसेस अगर सीखने वो सेकेंडरी है, बट अगर सिंपल टेंसेस भी आते हैं ना, आप इंग्लिश बोल सकते हो। Present, past, future. बट को प्रॉब्लम ही ये आती है टेंसेस के पीछे भागे जाते हैं हम। नहीं, मेरी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ऐसी नहीं है, जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ गोना गिव यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, आप समझोगे कि वहाँ पे चीज़ें आपके स्कूल से बहुत अलग होने वाली हैं। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बट ऑल्सो योर पर्सनैलिटी।
आके अनु ने आके ही, मैंने नहीं कहा अनु को कि ये चीज़ बोले, अनु ने ही कहा कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप करी है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ. तो हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कुछ इस तरह से होती हैं, राइट. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का, और मुझे लगता है जो सीखता है ना ज़िंदगी में उसके पास एक अच्छा क्वेश्चन होता है, या तो वो अच्छे से समझ गया, या कोई डाउट होगा उसके पास, और या तो कोई बिल्कुल नहीं पूछ रहा ना, कुछ नहीं है क्वेश्चन, मतलब वो कुछ सीख ही नहीं रहा. दो सिचुएशंस में लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते, या तो बिल्कुल ही नहीं समझ आया या तो बिल्कुल समझ आ गया. ठीक है. और जिनको थोड़ा बहुत समझ आया था वो क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि 100% समझ आ जाए. और मैंने तो ये बहुत बार कहा कि फर्स्ट लेसन, जब आप कोई चीज़ पहली बार सीखते हो 100% नहीं सीख पाते हो. जब उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, फिर आप डाउट्स पूछते हो, फिर वो 100% के क्लोज आती है चीज़ें. तो किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड स्पीकिंग और एनीथिंग, यू कैन आस्क मी, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं विद माय सजेशंस. ओके, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में. एनीबडी? यस नितिन. Sir, if we are overconfident, so it is definitely we will get failure only. No. Nobody decides what the result could be. Nobody knows who is your competition. Okay, when you have to compete with the people who are better than you, Yes, sir. okay, then obviously any minor mistake can make you lose, Yes, sir. right? But when you are competing with the people who are not that much good as much you are, then you even have the overconfident, you would be able to win over them, Yes, sir. Okay. right? But one thing I have learned it from a web series, Kota Factory, and I loved that web series. It's about teaching. और मैंने बड़ा ही रिलेट करा अपने आप को उस वेब सीरीज़ के साथ. उसमें जीतू सर हैं, वो कहते हैं इफ़ यू आर द बेस्ट इन द क्लास Then you are in the wrong class. then you are in the wrong class. So this is for you. If you think you would always win, Yes, sir. it's not. फेलियर से डरती क्यों हो? मैं आज तक नहीं डरा फेलियर से. Yes, sir. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद हम आज मॉड्यूल्स कम करेंगे, बट आई फील कि जो आप चीज़ें सीखोगे दोज वुड बी योर लाइफ लॉन्ग लेसन्स, Yes, sir. है ना. तो मुझे स्कूल के टीचर को पढ़ाना था. एक बार मेरे स्कूल के टीचर आए, मैम, वो कहते कि ऐसे ना टीचर मेरे हैं और उनके स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने पढ़ना है. ठीक है. तो जब उन्होंने कहा पढ़ना है, तो दीदी उस टाइम पे स्पोकन इंग्लिश नहीं करवाते थे, सिर्फ मैं करवाता था. तो मैम को पता लगा कि सागर ने पढ़ाना है. मेरे जो टीचर थे गुरबख्श मैम, वो डाउटफुल हो गए, कहते पढ़ा लेगा तू? मैं कहा मैम करवा लूँगा, कोई बात नहीं. दीदी ने भी कह दिया कोई बात नहीं. तो फिर दीदी ने भी मेरे से पूछा कर लेगा ना तू? मैंने दीदी से एक चीज़ सीखी थी, अपॉर्चुनिटीज़ को ना नहीं करनी. मैंने कहा क्या हो जाएगा उस दिन? उनको मेरी क्लास पसंद नहीं आएगी, वो कह देंगे कि हमने आपके सिस्टर से पढ़ना है. यही हो जाना था मैक्सिमम टू मैक्सिमम. Yes, sir. मैं इसी से डर ही नहीं रहा था. मैं कहा कह दें कोई बात नहीं. वो मैम आए, प्रिंसिपल, है ना, नाम ही बहुत है ना, आपको प्रेशर करने के लिए काफ़ी है. प्रिंसिपल कोई स्कूल के आपसे पढ़ने आ रहे हैं, Yes, sir. और उनके सिस्टर भी आए, और उनकी फैमिली से मेरे ख्याल से एक और लड़की आई थी, मुझे शायद उनका नाम याद नहीं है क्या था. तो वो 3 लोग पढ़ने आए थे मेरे से, 3 स्टूडेंट्स आई कुड से. और जब पढ़ने आए ना गाइस, मैं इतना नर्वस था ना. ये क्लास नहीं थी उस टाइम पे, थी ये वाली, बट ऊपर पीटी की क्लास है ना जहाँ पे, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता था मैं. तो वो आए, मैं बड़ा नर्वस. मैंने आपको बताई ना जनरेटर वाली बात. Yes, sir. फिर मैंने धीरे 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 अपने आप को गर्म करा पढ़ाते टाइम. तो पूरी क्लास कंप्लीट हो गई, मैंने पढ़ा दिया अच्छे से. मैंने पढ़ाए थे आर्टिकल्स. तो वो मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी क्लास होगी जब मैंने उन्हें आर्टिकल्स पढ़ाए. तो ना मैम, मैं ना से रूम से बाहर आया, मैम मेरे पीछे थे.
तो मैम कहते एक सेकंड मैंने बात करनी है। मैं कहा चलो, अब ये कहेंगे आपकी सिस्टर से पढ़ना है। That was one of the most beautiful day of my life. Okay? मैम कहते आर्टिकल्स मैंने बहुत बार सीखे, पर आज समझ आया यूज़ कैसे करते हैं। मुझे इतनी खुशी मिली ना उस दिन। अगर मैं डर जाता, अगर मैं कह देता नहीं नहीं मैं कितना पढ़ाना है यार, आई कांट टीच अ प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, बट वही टीचर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, राइट? वो लाइफ का मेरा सबसे ब्यूटीफुल और एक कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स इट वॉज। वो तभी हुआ जब मैं डरा नहीं और सोचा, जैसे ही मैम ने कहा ना, मैंने पूछा, मैं कहा चलो अब मैं दीदी को कह दूंगा दीदी आपने पढ़ाना है। बट ऐसा नहीं हुआ गाइस, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, वो शाहरुख खान कहता है ना, जब आप लाइफ में कुछ चाहते हो पूरी कायनात आपको उस चीज़ को मिलाने में हेल्प करने लग पड़ती है। इट इज़ ट्रू। मुझे पता है, मैंने हार्डवर्क करा था उस डे के लिए, मैंने अपना 100% दिया था उस दिन मैम के सामने, तो इसलिए वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल हो पाई। एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है 10th तक, +1 में कॉमर्स रख के इंग्लिश मीडियम देख के डर गया था, उसने एक स्कूल के प्रिंसिपल को इंग्लिश पढ़ाई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी और दैट वाज ओनली पॉसिबल क्योंकि उस दिन मैंने ना नहीं बोली, मैं डरा नहीं, मैंने ट्राई करा। फेलियर से कभी नहीं डरना ज़िंदगी में, ये दिमाग में डाल दो। जो लोग फेलियर से डरते हैं ना, चाहे फिर वो फर्स्ट ही क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा लेसन नहीं सीखा। फिर फेल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ओके, सो नेवर बी अफ्रेड टू फेल इन एनीथिंग। जब आप लाइफ में कुछ कोशिश करते हो, कुछ बड़ा करते हो ना, फिर तो फेल होना भी उसमें बड़ी बात होती है। कपिल शर्मा पता आपको? When one day Kapil Sharma went to Mumbai and he got nothing in his hands, and when he got no job, okay, whatever he wanted to do, he wanted to become famous, but when he was coming back, he didn't get any job, any work, and everybody was teasing him. But his father threw a party for him. You know that? His father threw a party for him, and the reason was he was so proud of his son because he also wanted to become famous. But he did not have that much opportunities or that many opportunities or that many guts to go to Mumbai. But his son went there at least. At least he thought about it. Thought about something big. जब आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हो ना, सबसे पहले थॉट आता है माइंड में। तो एटलीस्ट कपिल शर्मा वहाँ तक गया, उसके पापा ने उसके लिए पार्टी थ्रो करी थी। तो ये चीज़ें हैं लाइफ में, बड़ा सोचोगे तो बड़ा कुछ होगा। फेल होना तो पार्ट ही है ना लाइफ का, बट फेल भी वही होता है जो कुछ लाइफ में बड़ा ट्राई करने की कोशिश करता है। जैसे आज स्टूडेंट्स ने कुछ कोर्स सेंटेंसेस बनाए थे, तो एक ही तरह के सेंटेंसेस 4-5 बना दिए। वह 4-5 एक ही तरह के बना दिए, क्यों बना दिए? ताकि गलत ना हो जाए। बट क्या वो एक ही तरह के सेंटेंसेस उसे लाइफ में हेल्प करेंगे? तो लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो, कुछ बड़ा सोचो, ट्राई करोगे तभी तो चीज़ें वर्क करेंगी। कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ भी पूछना चाहो, फील फ्री टू आस्क एनीबडी if you have any question. No. Okay, thank you so much for watching this video. If you like it, don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon and share it as much you can. Thank you.